Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2 of Principles of Marketing. Chapter number 2 is about company and marketing strategy, partnering to build customer relationship. Basically, this chapter is about strategic planning process. So, here is the topic outline of chapter number 2. We will discuss the company-wide strategic planning, that how company can define marketing role, and we will also discuss the designing of business portfolios and how companies are going to plan the marketing, means how to build a strong customer relationship, then marketing strategies and marketing mix, and then managing the marketing efforts. These are the topics that we will discuss in chapter number 2. So starting with the introduction of this chapter, that is about strategic planning. This chapter is basically about strategic planning that I have discussed earlier. So strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organizational goals and capabilities and its changing market opportunities. Simply we can say the one thing is organization goal and one thing is organizational resources. इन दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करना. स्ट्रेटेजिक फिट इज मींस के विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, दैट हाउ वी कैन मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, means how we can achieve the goals of organization within the limited resources of organization. रिसोर्सेज को हम कैपेबिलिटीज भी बोल सकते हैं. मीन्स कि आप जो है वो अपने गिवन रिसोर्सेज के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कर सकते हैं. और क्योंकि मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिनेरियो चेंजिंग है, सो उस चेंजिंग और डायनामिक सिचुएशन के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. इसको एक और तरीके से भी मैं बात करता हूँ कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज बेसिकली द प्लानिंग एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आपने डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए होंगे, जिसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट आती है. सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है. सो हियर फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग it leads towards strategic management of the organization. कि आपकी strategic management जो top level management है वो decide कर रही होती है that what is basically the planning about marketing and other activities in the organization. So strategic planning is simply, we can say that how we can achieve the strategic fit between organization's goals and its capabilities and changing market opportunities. So, इसके लिए एक जो वो प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, उसको हम जो वो डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की. उससे हमें जो वो आइडिया होगा दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. सो दिस इज बेसिकली द फिगर गिवन इन चैप्टर नंबर 2, स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. This is basically 4 stages process in strategic planning process. So the first one is defining the company's mission. The second one is setting company's objectives and goals. And the third one is designing the business portfolios. And the last, but not the least, that is planning marketing and other functional strategies. You can see in this figure that first 3 phases are in corporate level, and the other or rest of one is about business unit or product or market level. यानी कि आप सिंपली हायरार्की वाइज इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. क्योंकि जैसे मैंने बात की पहले स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी लेवल होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लेवल, देन इसी तरह बिजनेस लेवल, देन इसी तरह प्रोडक्ट लेवल. कि आपकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल के ऊपर जो वो डिसीजंस हो रहे होते हैं. So the first 3 phases are about corporate level decisions, means strategic level. Strategic की
बात जब भी आएगी तो इट मीन्स टॉप लेवल की बात आएगी, ओवरऑल की बात आएगी, कंपनी वाइड की बात आएगी, कॉर्पोरेट लेवल की बात आएगी. So the first three phases are about corporate level. So first of all, we are going to discuss or going to define the company's mission. जब हम company's mission की बात करते हैं, तो company's mission is basically, in the larger sense, we can say that we have to define that what company is going to achieve in the larger sense. Simply, the mission statement is organization's purpose statement, what it wants to accomplish in the larger environment. इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो वो हमें राइज होते हैं कि हमने जो फाइंड आउट करना होता है while defining the mission statement, that are about what should our business be, then what is our business, then who is our customer, then what do customers value. These all are the questions that are related to define the mission statement. Overall, we can simply say that mission statement should be customer oriented और market oriented. हमें जब भी mission statement define करना है तो हमें market oriented जो वो mission define करना है, ताकि हम customer को superior value deliver कर सकें, customer उसके अंदर अपनी worth feel करे, value feel करे. So when we talk about market oriented mission, it means market relevant or customer relevant. So market oriented mission statement defines the business in terms of satisfying basic customer needs. So this was the first step by defining company's mission in strategic planning process. So strategic planning process का first step है defining the company's mission statement. एक यहाँ पे और सिंपल जो वो क्वेश्चन अराइज होते हैं, that what is difference between mission and vision statement. So सिंपली इसके अंदर डिफरेंट जो वो थ्योरीज इवॉल्व होती हैं. मैं आपको सिंपल अगर डिफरेंस बताने की कोशिश करूं तो विजन इज मोस्टली इनविजिबल एंड मिशन इज विजिबल. विजिबल इन अ सेंस that it is a written statement, mission is written statement, and vision is invisible or long term or future oriented outcomes जो आप जो वो जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट सोच सकती है, प्लान कर सकती है, दैट हम जो वो कहाँ पे होंगे अगले जो वो 20 साल बाद, 10 साल बाद, मीन्स वो लॉन्ग रेंज जो वो आपकी पर्सपेक्टिव में. और जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है, दैट इज द करंट रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि आप करंटली किस जो वो सिनेरियो के ऊपर, किस जो वो पर्पस के ऊपर जो वो सरवाइव कर रहे हैं. सो दोनों का अलाइन होना आपस में बड़ा जरूरी है. मिशन और विजन का आपस में अलाइन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे हायरार्की मैनेजमेंट की है, इसी तरह हायरार्की जो वो ऑर्गेनाइजेशंस की मैंने आपको बताई, इसी तरह गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की भी हायरार्की होती है. सबसे टॉप के ऊपर विजन है, देन मिशन है, देन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं आपके. सो जैसे जैसे जो वो हायरार्की चेंज होती है, ऐसे ही आपके मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी चेंज होते हैं. सो ओवरऑल बेसिकली ये आपस में अलाइंड होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो सबका ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो वी हैव टू डिफाइन मिशन स्टेटमेंट स्ट्रांगली, कि हमें जो वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस डिफाइन करना है, क्योंकि जितना स्ट्रांग पर्पस होगा उतना आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन द मार्केट फॉर द कस्टमर्स. So this was the first step of strategic planning process. Then the second step is setting companies objectives and goals, जो कि हम इस marketing process के अंदर भी जो है वो देख सकते हैं कि हमारा first step था defining company's mission and the second one is setting companies objectives and goals. So जब हम setting companies objectives and goals की बात करते हैं, तो it means we are talking about two goals. The one is about business objectives and the other one is about marketing objectives. Means जो आपके गोल हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये दो तरह के होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली related to build profitable customer relationships, or we can talk about invest in research, or we have to improve profits. Means simply we can say we have to generate enough profits for the company or generate enough business for the company. Relatively
We have to define marketing objectives as well. Marketing objectives बात करते हैं that we have to increase the market share, we have to create local partnerships, we have to increase promotions. So these are relatively marketing objectives. So both हमने बिजनेस और मार्केटिंग बोथ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना फॉर द कंपनीज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो these are the first two steps in company's strategic planning process. The third one was about designing the business portfolio. Business portfolio एक की रोल जो वो प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस पोर्टफोलियो बेसिकली है क्या? Business portfolio is the collection of business and products that make up the company. Simply, we can say it is the part of company that makes up the company. Just say, for example, we can also say the strategic business unit as well. Business portfolio or strategic business units, these are the same thing. जिनको हम SBU भी बोलते हैं. क्योंकि these are generating profits for the company. These business units or portfolios are going to generate profits for the company, earn money for the company, generating wealth for the company. So इसलिए इनको बोला जाता है business portfolio. For example, we can say there is a company that is Unilever. Unilever के different portfolios हैं. उसका एक portfolio Lux हो सकता है. इसी तरह एक portfolio उसका जो वो Surf Excel हो सकता है. इसी तरह एक पोर्टफोलियो उसका जो वो सुप्रीम हो सकता है, एक लिप्टन हो सकता है. These all are portfolios of the company. और पोर्टफोलियोज बनाए क्यों जाते हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि एक पर्सपेक्टिव इनका ये है टू जनरेट द मनी, टू एक्सेलरेट द प्रॉफिट्स. और इसी तरह साथ साथ इसलिए भी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंपनी, ताकि हम जो वो कंपनी के रिस्क को मिनिमाइज कर सकें कि एक जगह से हमें प्रॉफिट कम भी आ रहा है तो दूसरी जगह से जो वो हमें प्रॉफिट जो वो जनरेट हो रहा होगा. सो बिजनेस पोर्टफोलियो इज बेसिकली द पार्ट or pillar of the company that makes up the company, जिससे कंपनी जो वो बनती है. So here in strategic planning process we have to analyze these portfolios. हमें जो वो portfolios को analyze करना है, क्योंकि analysis is the major activity in strategic planning whereby management evaluates the products and businesses that makes up the company. उनको हमने evaluate करना है ताकि हम assess कर सकें whether business is going profitable or in loss situation. So दोनों को हम एनालाइज करेंगे तो तब हम प्रॉपरली जो है वो प्लान कर सकेंगे. So for the sake of portfolio analysis, here I'm going to show you basically the BCG matrix, that is about Boston Consulting Group. कि ये एक जो वो मैट्रिक्स दिया था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, जिसको बोला जाता है BCG मैट्रिक्स. इससे हम क्या करते हैं? बेसिकली दिस इज फॉर द एनालिसिस ऑफ पोर्टफोलियो. दिस BCG मैट्रिक्स इज अबाउट एनालिसिस ऑफ पोर्टफोलियोज. इससे हम जो वो पोर्टफोलियोज का, स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस का एनालिसिस कर सकते हैं कि इस वक्त हमारा कौन सा बिजनेस कहाँ पे फॉल कर रहा है. सो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस BCG मैट्रिक्स. BCG मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स हैं. 4 क्वाड्रेंट्स मींस यू कैन सिंपली से इसके जो वो ये एक सिंपली ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है रिलेटिव मार्केट शेयर और वाई एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है दैट इज मार्केट ग्रोथ रेट. आप सिंपली ये कह सकते हैं कि मार्केट शेयर इज कैश जनरेशन पोर्शन एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज कैश कंजम्पशन और कैश यूजेज पोर्शन. सो इसके 4 क्वाड्रेंट्स हम करेंगे. 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? द फर्स्ट वन इज अबाउट कैश काउज. के फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका कैश काउज. देन सेकंड वन इज स्टार्स. द थर्ड वन इज अबाउट क्वेश्चन मार्क्स एंड द फोर्थ वन इज अबाउट डॉग्स. ये BCG मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे होंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे कैश काउज लिखा है उसके साथ जो वो एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन है दैट इज लो. अब लो मींस लो मार्केट ग्रोथ रेट. और इसी तरह स्टार्स के साथ मेंशन है हाई. हाई मींस हाई मार्केट ग्रोथ रेट. जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है हाई टुवर्ड्स लो. इसी तरह आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रिलेटिव मार्केट शेयर जो वो मेंशन है, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है वो लो टू हाई आपकी जो वो स्ट्रीम जा रही है. मींस एट वेरी राइट कॉर्नर यू कैन सी दैट इज लो. लो मींस लो मार्केट शेयर. और एट द वेरी extreme end that is high. High means high market share. So
For the sake of understanding, we can say this is another example of BCG matrix कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक और जो वो ग्राफ बना दिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट ग्रोथ रेट ऑन द वाई एक्सिस और रिलेटिव मार्केट शेयर ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना जरा आसान होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज अबाउट कैश काउस। कैश काउस क्या है? कैश काउस आर द पोर्टफोलियोज ऑफ द बिजनेस with low market growth rate but with high relative market share. You can say कि इनका market growth rate कम है, market spendings कम है, but with high relative market share कि इनका market share ज्यादा। number of market share depends upon number of customers, कि जहां पे number of customers ज्यादा होंगे, जहां पे customers pool ज्यादा होगा, वहां पे high market share होगा। So simply we can say the cash cows are द पोर्टफोलियोज जहां से हमें अर्निंग सबसे ज्यादा हो रही है, और इसी वजह से इन्हें कैश काउज कहा जाता है। और आप जो वो ऊपर वाले ग्राफ के अंदर जो वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश काउज को डॉलर साइन के साथ जो वो मेंशन किया गया, मींस दीज आर जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट फॉर द कंपनी। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि कैश काउज के अंदर स्पेंडिंग्स आपकी कम है, स्पेंडिंग्स आपकी कम है, लेकिन आपकी जनरेशन ऑफ प्रॉफिट वो ज्यादा है। So, इस वजह से इनको बोला जाता है कैश काउज। इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज अबाउट स्टार्स। स्टार्स आर बेसिकली द पोर्टफोलियोज विद हाई मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई रिलेटिव मार्केट शेयर। आप सिंपली इनको ये कह सकते हैं कि दीज आर द टॉप पोर्टफोलियोज ऑफ द कंपनी, जिनको हम जो वो एनालाइज कर रहे हैं जब, तो जिनका रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होगा, रिलेटिव मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होगा, मींस हाई लेवल के ऊपर रैंक कर रहे होंगे, उनको हम स्टार्स कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे लेकिन एक चीज जो वो है, ये सबसे टॉप के ऊपर, लेकिन फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, इन कंपनी इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तो कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर दे आर जनरेटिंग लेस प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू कैश काउस। क्योंकि फॉर मेंटेनिंग दैम, जब हम स्टार्स की बात करेंगे तो स्टार्स पोर्टफोलियो के ऊपर सबसे ज्यादा आपकी स्पेंडिंग्स भी हो रही है, क्योंकि दे आर हैविंग हाई मार्केट ग्रोथ रेट, उनका मार्केट ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा है। सो मार्केट ग्रोथ रेट को हाई रखने के लिए आपको स्पेंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा करनी पड़ती है। सो इस वजह से दे आर एट द टॉप ड्यू टू हाई मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई रिलेटिव मार्केट शेयर। So the third quadrant that is about question mark. जब हम question mark की बात करते हैं तो these are the portfolios with high market growth rate but relatively low market share, किनका market share कम है। अब simply हम ये कह सकते हैं कि market share जब कम है तो it means कि market के अंदर acceptability कम है, customer आपको accept नहीं कर रहा या वो relatively low accept कर रहा है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के अंदर, लेकिन दे आर हैविंग हाई मार्केट ग्रोथ रेट, कि उनके ऊपर मार्केट स्पेंडिंग ज्यादा हो रही। सो इस सिनेरियो के अंदर ये भी जो वो मार्केट के लिहाज से, कंपनी के लिहाज से जो वो इनफ प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेंडिंग्स भी ज्यादा हो रही हैं। सो उन स्पेंडिंग्स को मिनिमाइज करके आप इनको कैश काउज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस कि आप जो वो अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को एनहेंस करके या फिर अपनी मार्केट स्पेंडिंग्स को कम करके, मींस मार्केट ग्रोथ रेट को कम करके, आप जो वो इनको कैश काउज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क इज दिस कि यहां से अगर नीचे गया तो आप डॉग्स की सिचुएशन में चले जाएंगे। यहां से अगर आपकी जो वो बिजनेस नीचे जाती है तो आप जो वो डाउनफॉल का शिकार हो जाएंगे। So for the sake of sustainability, आपको इन क्वेश्चन मार्क्स को यहाँ पे you have to think about it, इनके बारे में आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ताकि इनको आप इंप्रूव कर सके। So the last quadrant in BCG matrix, that is about dogs. इनका low market growth rate है। Dogs are the portfolios with low market growth rate and low relatively market share, के market growth rate भी कम है और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम है। दोनों सिनेरियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ग्रोथ रेट कम होने का मतलब ये है कि स्पेंडिंग्स भी कम है, और मार्केट शेयर कम होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम।
जब नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे तो इट मींस कि वी कैन से दैट वी हैव टू थिंक अबाउट इट, हमें इसके बारे में सोचना है कि हम इसके बारे में पॉलिसीज बनाएं, इसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाएं, ताकि हमारा फोकस हो कि हम इनको वापस क्वेश्चन मार्क्स में बदल सकें और अगेन कैश कोज और स्टार्स की तरफ लेके आ सकें। क्योंकि अगर आपके डॉग्स की सिचुएशन से बिजनेस डाउनफॉल आता है तो इट मींस कि यू आर गोइंग टू क्विट द बिजनेस। सो आपको क्विट वाली सिचुएशन से बचाना है, आपको जो है वो बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना। सो दिस इज बेसिकली द बीसीजी मैट्रिक्स अबाउट बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के, जहां पे आपको जो है वो पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है, दैट हाउ वी कैन एनालाइज द पोर्टफोलियोज ऑफ द कंपनी, कि आप जो वो कंपनी को कैसे जो वो एनालाइज कर सकते हैं।